students, welcome you all. In my previous video, we had been discussing the phylum of Animalia. We had discussed Porifera, Coelenterata, Platyhelminth, Nematohelminth, and thereafter Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, chordates, and vertebrates. In the group of vertebrates where the notochord has been replaced by vertebral column, these vertebrates have been further classified into various groups. Among these, excepting the Cyclostomata, which has no jawbone, we have pisces, amphibians, reptiles, aves, and mammals. If we talk of these species, it is of two kinds, cartilaginous and bony. The body is covered by the exoskeleton called scales, and these scales in pieces are of two kinds. One is the cycloid scale and the other one is placoid scale. The organism is aquatic and respires through gills. Heart is two-chambered only, and the whole body is circulated with a mixture of oxygenated and deoxygenated blood. Because of the separation phenomena of oxygenated and deoxygenated blood cannot be seen in case of pisces. If we talk of amphibians, the name amphibian is suggesting that the animal is equally comfortable in leading aquatic life and terrestrial life, hence the name amphibians. And the amphibians have developed cutaneous mode of respiration apart from the pulmonary respiration. अगर हम लोग pulmonary respiration की बात कर रहे हैं तो pulmonary respiration stands for the respiration that takes place with the help of lungs. तो जब भी ये frog जैसा animal land पर होता है, it is able to respire through its lungs. लेकिन जैसे ही ये पानी में जाता है तो पानी में pulmonary respiration possible नहीं हो पाता, और ऐसे कंडीशन में the frog is able to respire through its skin, जिसको हम cutaneous respiration कहते हैं. And this is the reason that the skin of amphibians is slimy and moist. Amphibians की बात करते हैं तो heart in amphibians are three-chambered. That is, the upper chamber, which is known as atrium or auricle, it has two chambers, left and right atrium, but the lower chamber, which is known as ventricle, has only a single chamber. Hence, only three-chambered heart is there in case of amphibians, and it is one of the examples of evolutionary status of the organism. ये इसके इवोल्यूशन की बात है कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किस लेवल तक हो पाया है कि इसके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्री चैम्बर्स हमको दिखाई देते हैं. द सेम थ्री चैम्बर्ड हार्ट कैन बी सीन इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लेस्ड अंडर रेप्टाइल्स. लेकिन हमने कहा इवोल्यूशन को पढ़ते हुए हमने इस बात पर लगातार नज़र रखी हुई है कि वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी खास टैक्सा में रखे गए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में इसके प्रीवियस लोअर टैक्सा में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं या जिन ऑर्गेनिजम्स को हमने लोअर टैक्सा में प्लेस किया है, उन ऑर्गेनिजम्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक एडवांसमेंट का ट्रेंड देखा जा रहा है. और अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो एम्फीबियन में जिस तरह थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमको दिखाई देता है, द सेम थ्री चैम्बर्ड हार्ट कैन बी सीन इन रेप्टाइल्स ऑल्सो. लेकिन रेप्टाइल्स के जो एडवांस्ड मेंबर्स हैं, क्रोकोडाइल्स में हम आकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि क्रोकोडाइल्स में जो लोअर चैम्बर है हार्ट का वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल में लगातार पार्टीशन डेवलप करने लगा है और
क्रोकोडाइल्स से पहले के कुछ ऑर्गेनिज्म में ये पार्टीशन लिटिल लोअर स्केल पर हमको दिखाई देता है। क्रोकोडाइल में आकर के ये दिखता है ऐसा कि वेंट्रिकल का ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्टीशन हो चुका है। ये जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ये हमको रेप्टाइल्स में दिखाई देता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में जो स्किन है, दैट स्किन इज कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स। द ऑर्गेनिज्म इज ओविपेरस। Nitrogenous waste in case of reptiles is excreted in the form of uric acid, and animal is poikilothermal. poikilothermal का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल से मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय बॉडी इटसेल्फ। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से लगातार ये टेम्परेचर इसका इफेक्ट होता रहता है। लोअर द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, लोअर इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हायर इज द temperature of the environment, higher is the body temperature of the organism. Heart 3 to 4 chambered, यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स में हैं जिनके हार्ट को हम 3 चैम्बर्ड देखते हैं। इनमें पार्टीशन का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होता है, और जो एडवांस्ड मेंबर हैं क्रोकोडाइल जैसे मेंबर, इनके पास आते आते हमको यही हार्ट फिर से 4 चैम्बर्ड मिलने लगता है। द नेक्स्ट एडवांस ग्रुप इन द vertebrates, in the group of vertebrates, is aves. Aves stands for the animals that have the flight mechanism. हम लोग सीधे तौर पर इसको birds का नाम दे सकते हैं। बर्ड्स के बॉडी की बात अगर हम करते हैं तो बर्ड्स में हम भी एक्सोस्केलेटन को पाते हैं, और यह एक्सोस्केलेटन जो है इट इज़ मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। 4 लिम्ब, ये ऑर्गेनिज्म जो टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रापोडा का मतलब टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4 एंड पोडा इज फीट। तो ये 4 फीट वाले एनिमल हैं। फ्रॉग में देखिए 2 पैर इसका अगला और 2 पैर पिछला, यानी ये टेट्रापोडा के अंदर आता है। और ये एव्स भी टेट्रापोडा है। आपको अगर आप बहुत होशियारी से नहीं सोच रहे हो तो आपको लगेगा कि सर ने क्या कह दिया कि ये टेट्रापोडा है। पैर, चिड़िया के तो 2 ही पैर होते हैं। हाँ, आपका सोचना ठीक भी है, लेकिन चिड़िया के जो 2 डैने हैं, जिनको आपने देखा होगा डैनों को फड़फड़ाते हुए चिड़िया को, ये दोनों डैने चिड़िया के अगले 2 पैर हैं, जिसका मॉडिफिकेशन विंग्स के रूप में हो चुका है। इसके अलावा इसके बॉडी के भीतर जो एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन जो है ये बोनी होता है, सॉरी इंडोस्केलेटन बोनी होता है विथ एयर स्पेसेस इनसाइड। और ये एयर स्पेसेस इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को लाइटर बनाता है, प्रोवाइड्स बॉयंसी एंड हेल्प इन इट्स फ्लाइट मैकेनिज्म। तो बोन्स कैसे होंगे? एयर स्पेसेस होंगे बोन्स में। और एक और आश्चर्य की बात ये है कि जो ओवरी ऑर्गेनिज्म, फीमेल बर्ड्स में जो ओवरी होता है, जो कि पेयर में होता है, 1 पेयर इन नंबर, इनमें से एक ओवरी जो है वह रिड्यूस हो जाता है और यह बॉडी वेट को थोड़ा और लाइटर बनाता है। ओनली ए सिंगल ओवरी इज फंक्शनिंग। जॉज इन द बर्ड्स आर टीथलेस एंड मॉडिफाइड इनटू बीक। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम चिड़िया कहते हैं, जिन्हें हम एव्स के ग्रुप में रखते हैं, इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, इसलिए कि इसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। एंड देयर आफ्टर वी हैव मैमल्स हैव आल्सो द एक्सोस्केलेटन मॉडिफाइड इनटू हेयर्स एंड हूफ्स। आपने नेल्स देखे होंगे उंगलियों में, ये जो नेल्स हैं, बाल देखे होंगे बॉडी के ऊपर, हेयर्स ऑन द स्किन, ये जो हेयर है, ये हूफ है, दीज आर द मॉडिफाइड एक्सोस्केलेटन इन मैमल्स। एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम लोग कान का बाहर का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, दिस पिन्ना can be seen only and only in mammals. This is one of the most important characteristic feature of mammals. इसके अलावा
you must have seen mammary gland to feed its young ones. अपने बच्चों को पालने के लिए, इसे दूध पिलाने के लिए मैमल्स के फीमेल के पास ये मैमरी ग्लैंड होता है. द ऑर्गेनिज्म इज होम्योथर्मल एंड हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट. इस मैमल की बात अगर हम करते हैं तो इस मैमल को हम फर्दर 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया. अगर हम प्रोटोथीरिया की बात करते हैं तो प्रोटोथीरिया में एग लेइंग मैमल्स की चर्चा शायद आपने सुनी हो. हालांकि बर्ड्स तक जो है जितने ऑर्गेनिज्म को हमने प्लेस किया है, दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस. ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते. यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो डेवलपमेंट है इट इज़ इन द मैमल्स. लेकिन मैमल्स में भी जो ये प्रोटोथीरियंस हैं, इन प्रोटोथीरियंस में पिछले ग्रुप के ये कैरेक्टरिस्टिक्स के वो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस है. दिस ओविपेरिटी इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन मैमल्स एंड दिस इज शोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ मैमल्स विथ एप्स. चिड़ियों के साथ मैमल्स का जो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यह रिलेशनशिप हमको प्रोटोथीरिया के एग लेइंग हैबिट में दिखाई देता है, एग लेइंग फीचर में दिखाई देता है. और इस तरह से हम लोगों ने होल एनिमल किंगडम को पढ़ा है. अब अगर हम एनिमल किंगडम को अलग अलग देखने पॉरीफेरा से स्टार्ट करें तो पॉरीफेरा के जो कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम वाइज हम अलग अलग फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज इतना ही. कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा सेल नंबर है 7050773907. थैंक यू.